students, good evening. How are you all? I hope you all are good. I am also good. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all my channel Yadav Usha classes. So today we are going to start our aptitude and reasoning subject for the 6th class. So it is on the basis of the students, because there were many students who were not able to attend the classes online because of internet connection, and we all know internet is not in a hand. So this is on the high demand of for those students. I am start making the videos, so please students like and subscribe my channel Yadav Usha classes. Okay, so reasoning subject, basically it is divided into 3 parts. In first part we will cover our qualitative reasoning, and in second part we will discuss the quantitative reasoning, and in third part we will cover the English language. Okay, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्वालिटेटिव रीजनिंग इज योर alphabetical arrangements, as I have already written on the board, because if I write the on board so it will take some time. So without wasting the time, let's start the class. Yes, let's focus on the board. This is the today's topic of discussion, that is alphabetical arrangements. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली दिस चैप्टर वी विल कवर इनटू 2 पार्ट्स। इस चैप्टर को हम किस में करेंगे, 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट इजीली। ओके, इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस हाउ टू फॉर्म द पेयर्स, दैट इज पेयर फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट में हम पेयर फॉर्मेशन को करेंगे। इन सेकेंड पार्ट वी विल कवर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। सो लेट्स सी हाउ वी डिवाइड द पेयर फॉर्मेशंस इनटू 2 parts. Okay, so basically pair formation it is a very important topic. इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत important है और बहुत interesting है। Actually students, you will enjoy the reasoning subject while studying with me. Okay, so I will try to make you comfortable with me. Okay, so this is the topic. Today's topic of discussion is, हम आज सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, किसको, पेयर फॉर्मेशन को। After finishing the pair formation, we will do the arrangement of the words. Okay. In pair formation, basically 2 type of questions asked. First one is, examiner will ask, form the pairs as per English alphabetical series. In second type, he will ask the question like, form the pairs as per English alphabetical order. Okay, so basically you can see there is a one word difference here, that is series and order. Other are same. Okay, others are same. So what is the difference, how we differentiate these, कैसे हम differentiate करेंगे कि एग्जाम में अगर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई होगी कैसे कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास मैं आपको बताती हूँ हाउ वी डिफरेंशिएट इट। चलो देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सीरीज, जब when this type of question asked to you, then you have to count the number of pair in both forward and प्लस रिवर्स डायरेक्शन, दोनों में ही आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, पेयर्स को बनाएंगे। दोनों ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, आप पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, जब आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या करने पड़ेंगे, पेयर्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस था और हमने इसको सॉल्व किया, लिखा यहाँ पे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, बिकॉज विद द एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड द बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ द पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, हम इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म द पेयर्स एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने एक वर्ड लिया है प्रीएम्बल। ओके,
प्रीएम्बल हमने एक वर्ड लिया, इसमें हमें क्या करना है, वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इन टू वेज। इन फर्स्ट वेज वी राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अल्फाबेट्स, एंड इन सेकंड वे वी विल डू इट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल काउंटिंग्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, वी कैन काउंट द अल्फाबेट्स इन दिस वे, और वी कैन राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द ईच अल्फाबेट्स। ठीक है, if you want ma'am how to learn the place values of the alphabets, I will make a separate video for that, so that you will not face the difficulty in learning the place value. Okay, so if you want please tell me in comment section. Okay, yes, preamble में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक एक अल्फाबेट को क्या करेंगे, पिक करेंगे। वी पिक वन अल्फाबेट एट ए टाइम, एक अल्फाबेट को हम पिक करेंगे एंड स्टार्ट रीडिंग द अल्फाबेट्स। लेट अस टेक पी, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट अल्फाबेट पी। पी के बाद हम पी, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू, इस तरह से हमें पढ़ते जाना है। हम पढ़ेंगे कैसे, रीड करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। ओके, अब हमें देखना था पी से हमने स्टार्ट किया, पी के बाद क्या आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर आना के, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे एस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। टी आना चाहिए था, एम आया है। यू आना चाहिए था, बी आया है। वी आना चाहिए था, एल आया है। डब्ल्यू आना चाहिए था, ई आया है। इट मीन्स हमारे पास एक भी ऐसा पेयर नहीं बना जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, जहां पे भी हमारे पास आ जाएगा वर्ड वहीं पे हम पेयर बना देंगे। यहाँ पे हमारे पी से कोई पेयर नहीं बना, सो लेट अस रब इट एंड वी विल मार्क ए क्रॉस हियर बिकॉज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज योर फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे, सेम हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को रीड करेंगे। आर के बाद क्या आता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं आया, इट मीन्स आर से भी कोई पेयर नहीं बना। ई के बाद क्या आना चाहिए, ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे भी कुछ भी पेयर नहीं बना क्योंकि कोई भी अल्फाबेट नहीं आए। ए बी सी डी ई, तो हमने जैसे हमने यहाँ से अल्फाबेट्स को रीड करना शुरू किया, ए बी सी डी ई, तो हमारे पास यहाँ पे किसका पेयर बन गया भाई, ए और ई का पेयर बन गया। इट मीन्स जितने अल्फाबेट्स इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए और बी के ई के बीच में होते हैं उतने ही कितने अल्फाबेट्स होते हैं, बी सी डी, तो 3 होते हैं, 1 2 3 हो गए और 4th नंबर पे हमारे पास ई आ गया। ई आ गया, इट मीन्स यहाँ पे एक पेयर बन गया। इसी तरह चलो यहाँ से एक पेयर बन गया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, हम पेयर के लिए इस तरह का एरो लगाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो कि हमने फॉरवर्ड में काउंट किया है या बैकवर्ड में किया है। ठीक है, फिर हम एम को पिक करेंगे, एम एन ओ पी, एम से कोई पेयर नहीं बना। बी सी डी, बी से कोई पेयर नहीं बना। एल एम, एल से भी कोई पेयर नहीं बना। सारे अल्फाबेट्स हो गए हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा पेयर बना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पेयर बना है, वो भी कौन सा पेयर बना है, ए एंड ई का। एक पेयर बना है किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए एंड ई का। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास पेयर कितने बने, फॉरवर्ड एफ डी मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कितना पेयर बना, 1, और कौन सा पेयर बना है, ए एंड ई का। ठीक है, अब हम रिवर्स, आर डी मीन्स रिवर्स डायरेक्शन, इसमें हम काउंट करेंगे चलेंगे। तो मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और हमारा नीट एंड क्लीन रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ चलेंगे हम। सो दिस इज योर रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। अब यहाँ हमें क्या करना है, राइट मोस्ट अल्फाबेट को पिक करना है। राइट मोस्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे, ई को पिक करेंगे। ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ जी एच आई जे के एल। इट मीन्स यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बना, कोई पेयर नहीं बना तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट को पिक करते हैं, एल को पिक किया हमने, एल एम एन ओ पी क्यू आर।
यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बना, कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं आया जब हमने एल से रीड करना शुरू किया तब। चलो बी को पिक करते हैं, बी सी डी ई। इट मीन्स हमारे पास एक पेयर बी और ई का बन गया है। जब मैंने बी को पिक किया तो हमारे पास बी के बाद क्या आता है, सी डी और ई। बी और ई के बीच में कितने हैं हमारे पास, बी और ई के बीच में दो अल्फाबेट आते हैं, तब हमारे पास डी ई आता है। तो बी यहाँ पे भी दो अल्फाबेट है, बी सी डी, ये इनका प्लेस है, लेकिन यहाँ पे ये आ नहीं रहे इसलिए कोई पेयर नहीं बना, लेकिन ई अपने प्लेस पे आ गया है, थर्ड नंबर प्लेस पे। तो इट मीन्स ये एक पेयर बन गया रिवर्स डायरेक्शन में। अभी हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है इसको, बी सी डी ई। काफी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहीं से छोड़ के और नेक्स्ट अल्फाबेट को पिक कर लेंगे एम को। नहीं, हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। काफी बार क्या होता है, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सपोज यहाँ पे एंड में जाके कुछ और वर्ड होता है, ई के बाद एफ जी, जी होता है यहाँ पे, तो पेयर बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भूल जाते हैं, वो यहीं पे छोड़ के यहाँ पे क्विट कर देते हैं अपने प्रोसेस को और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन रखेंगे, ई एफ जी, कोई पेयर नहीं बना। ये तो अच्छी बात है कि नहीं बना, यहाँ पे इंसिडेंटली बन जाता तो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो जाता। अब हम करते हैं एम से, एम एन ओ पी क्यू, कोई नहीं बना। ए बी सी डी, यहाँ से भी कोई नहीं बना। ई एफ जी, यहाँ से भी कोई नहीं बना। और एस। इट मीन्स हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में भी एक पेयर बना है। वो भी कौन सा पेयर बना है हमारे पास, बी एंड ई का। एक पेयर बना है बी एंड ई का। अभी आपसे स्टेटमेंट में लिखा होता कि फॉर्म द पेयर्स एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते। ऐड करते तो सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आता, सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आता, 2 आंसर आता। आंसर क्या आता, 2। लेकिन जब ये ऑर्डर बोलता इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या आता, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो आंसर क्या आता, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आंसर 1 आएगा और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर 2 आएगा। क्योंकि आंसर 2 इसलिए आया, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट किया है और रिवर्स डायरेक्शन में भी काउंट किया है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो एक पेयर फॉरवर्ड में बना है, एक रिवर्स में बना है, टोटल आर 2 पेयर्स इन अकॉर्डिंग टू द सीरीज। सीरीज जब पूछेगा, सीरीज वर्ड आ जाएगा तो हमें क्या करना है, आंसर लिखना है 2, और अगर ऑर्डर आता है तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे 1। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, यहाँ से इसको हम वी विल डिस्कस इट लेटर। सो दिस इज द एग्जाम्पल। आई होप एग्जाम्पल से आपको सभी को समझ में आया होगा। सो नाउ आई एम राइटिंग द प्रॉपर स्टेटमेंट। अभी मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूंगी और उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम। Yes. Sorry. Statement is given to us. Question. कैसे statement कैसे दी हो? Question number 1. Question number 1. How many pairs? Find how many pairs? How many pairs of alphabets have same number of alphabets in between them, between एक वर्ड ले लेती हूँ मैं, stainless, between stainless, between the word stainless,
between stainless word as there in English alphabetical series. तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आया होगा आपको कि यहाँ पे क्या है। तो काफी बार क्या दिया होता है, एज देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे सिंपल इतना लिखा था, उसका सेम मतलब है। तो इसमें हमारे पास वर्ड कौन सा दिया हुआ है, स्टेनलेस। क्या दिया हुआ है, स्टेनलेस, स्टेन STA स्टेनलेस, क्या वर्ड दिया है, स्टेनलेस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सीरीज मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा और रिवर्स में भी जाना पड़ेगा। तो चलो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारी कैसे होती है, इस तरफ होती है, दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होती है हमारे पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली होती है, दिस इज योर रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। इसमें हमारे पास क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक एक अल्फाबेट को पिक करेंगे और उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट्स को रीड करेंगे उसके जस्ट आफ्टर। ठीक है, लेट अस टेक एस। हमने एस को लिया, एस को लेंगे तो इसके बाद क्या आता है, एस टी, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पेयर, तो एस टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हो गया। इसके बाद हम रीड नहीं करेंगे। काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स A to Z होते हैं, 26 तक होते हैं, उसके बाद हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ Z तक काउंट करेंगे, उसके बाद हम उल्टा नहीं रीड करेंगे। तो एस टी, जैसे मैंने यहाँ पे रीड किया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तक होते हैं तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब इससे आगे हमारे पास अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। चलो टी से शुरू करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एस और टी साथ में है, जब इसका कोई पेयर नहीं बना तो ऑफकोर्स टी का भी कोई पेयर नहीं बनेगा। अब पिक करेंगे ए को, ए बी सी डी ई, एक पेयर यहाँ पे बन गया ए और ई का, ई एफ जी आई जे के एल एम एन, यहाँ से कोई पेयर नहीं बना, क्रॉस कर लो। एन ओ पी क्यू आर, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। एल एम एन ओ, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। ई एफ जी, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं बनेगी, क्योंकि एस के बाद टी आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, एस। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कितने पेयर्स बने, फॉरवर्ड एफ डी मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 पेयर्स बने, एक तो बना हमारे पास एस टी का और एक बना हमारे पास ए एंड ई का। ओके, नेक्स्ट अब हम चलेंगे, वी विल मूव टू द रिवर्स डायरेक्शन। इन द रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, हम राइट मोस्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे, राइट मोस्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे वन बाई वन। एस, एस को हमने पिक किया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तक रीड किया, उसके बाद छोड़ देना है, कोई पेयर नहीं बना, यस। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के, ई से भी कोई पेयर नहीं बना। एल एम एन ओ पी क्यू, एल से भी नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर, यहाँ से भी नहीं बना। आई जे के एल, यहाँ से भी नहीं बना। ए बी सी, यहाँ से भी नहीं बना। टी और एस, यहाँ से भी नहीं बना। इट मीन्स हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में कितने पेयर बने हैं, एक भी पेयर नहीं बना है। एक भी पेयर नहीं बना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में हम लिख देंगे, रिवर्स डायरेक्शन में 0 पेयर है, 0 पेयर है, कोई भी पेयर नहीं बना। इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो जाएंगे, कितने पेयर फॉर्म हुए हैं इन अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि रिवर्स में तो 0 है। 2 + 0 क्या होता है, 0, सॉरी 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है। 0 किसी में भी ऐड करो हमारे पास क्या आता है, 2 ही आता है। तो चलो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था।
अगर इसमें पूछता इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब भी हमारे पास यही आंसर आता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, एक भी पेयर नहीं बना, एक भी पेयर नहीं बना, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों ही क्वेश्चंस में। अगर यहाँ पे सीरीज और ऑर्डर बोल देता, सीरीज कॉमा ऑर्डर, तो दोनों का ही आंसर क्या होता, दोनों का ही आंसर क्या होता, दोनों का ही आंसर होता है हमारे पास 2, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में 0 पेयर बने। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्या करेगा, आपसे सिंपल कुछ नहीं करेगा, आपसे वर्ड्स को चेंज कर देगा, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, और वर्ड्स को चेंज करेगा। तो आपके पास वर्ड्स का, चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम वर्ड्स को। सपोज यहाँ पे वर्ड लिख दिया उसने, कुछ वर्ड को चेंज कर देगा, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, बाकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, एज इट इज, जैसी है वैसी ही रहेगी। सपोज आपके पास वर्ड क्या है, आपके पास एक अच्छा वर्ड ले लेती हूँ, एडिक्वेटली। एडी, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोंग करते हैं। एडिक्वेटली, एडिक्वेटली, एडिक्वेटली मीन्स कुछ चीज, ये एडवर्ब होती है, एडिक्वेट हमारे पास एडजेक्टिव होता है, मतलब सफिशिएंट कुछ चीज। तो एडिक्वेटली हमने यहाँ पे लिखा एडी, एडी, QATELY। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमारे पास सीरीज और ऑर्डर दोनों में बताना है, मैंने आपको दोनों, ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ हमें समझ में आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन, दोनों काउंट कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे हम। फॉरवर्ड डायरेक्शन लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम ऐसे चलेंगे, और रिवर्स डायरेक्शन लेंगे तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, तो एक एक अल्फाबेट को पिक करते हैं, ABCDEFGHIJ, ए से कोई पेयर नहीं बना, DE, इससे एक पेयर बन गया, डी के बाद जस्ट क्या आता है, ई आता है, EFGHIJKL, यहाँ से कोई पेयर नहीं बना, इसके बाद कोई पेयर नहीं बना। अब हम चलते हैं EFGHIJKL, इससे कोई पेयर नहीं बना, QRST, यहाँ से एक पेयर बन गया है। कौन सा पेयर बन गया है, Q और T का, क्योंकि जो Q और T के बीच में जितने अल्फाबेट्स इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आते हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, इसलिए एक पेयर बन गया है QRST। आगे भी चलना है UVW, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा है, UVWXY, तो U एंड Y से एक पेयर और बन गया हमारे पास, UVWXY, सॉरी, एक भी पेयर नहीं बनेगा, एक भी पेयर नहीं बनेगा। U के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक भी पेयर नहीं बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, यहां से करो UVWXYZ, इट मीन्स U से कोई पेयर नहीं बना, ABCDE, कोई भी पेयर नहीं बना, TUVW नहीं बना, EFG नहीं, L के बाद क्या आना चाहिए, M नहीं बना। इट मीन्स हमारे यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने पेयर्स बने हैं भाई, 2 पेयर्स बने हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने पेयर बने हैं, 2, एक तो बना हमारे पास D एंड D का, और एक बना हमारे पास Q एंड T का पेयर। ओके, चलो अब काउंट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे, तो मैं इनको रब कर देती हूँ क्रॉसेस को, ताकि क्लैरिटी रहे आप सभी के लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। मैंने आपको बताया था अल्फाबेट्स हमें Z तक रीड करने हैं, उसके बाद रीड नहीं करने हैं, ठीक है। YXY होता है YZ, उसके बाद A B C ऐसे नहीं पढ़ना है, यहीं पे इसको लीव कर दो, इट मीन्स यहाँ से कोई पेयर नहीं बना। मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना हमारे पास अल्फाबेट्स क्या होते हैं, A to Z तक होते हैं, Y और Z होते हैं, उसके बाद हमें उल्टा रीड नहीं करना है, A B C D ऐसे नहीं रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस वर्ड को पिक करेंगे, Y को, यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पिक किया, बाकी क्वेश्चन तो आप लगा देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, Y को पिक किया, Y के बाद क्या आता है Z, तो Z तक ही रीड करना, उसके बाद A B C D ऐसे रीड करना स्टार्ट नहीं करना है। तो यहीं पे इसको छोड़ दो, बाकी कोई पेयर नहीं बना, तो L Y से कोई पेयर नहीं बना है। अब यहाँ से लो L M N O P Q, देखो M N O P Q, बोलो बना कि नहीं बना, बन गया हमारे पास एक पेयर। Q R S T, इसको कंटिन्यूशन में रख
रखना है। EFGHIJKL, यहाँ से कोई पेयर नहीं बना। TUVWXYZ, यहाँ से कोई पेयर नहीं बना। ABCDEF, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना है। UVWXY, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। QRST, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बना। EFG, यहाँ से भी कोई नहीं, और DE, कोई पेयर नहीं बना। इट मीन्स हमारे यहाँ पे देखो रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बना है। रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी पेयर नहीं बना है। इट मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में कितने पेयर्स हैं आपके? 0 पेयर्स हैं। रिवर्स डायरेक्शन में जीरो पेयर्स किन से बने हैं? जीरो किन से बने हैं? जीरो बने हैं हमारे पास बाकी सभी अल्फाबेट से। एक पेयर बना है किसका? एक पेयर बना है किसका? L एंड Q का। L एंड Q का। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसमें पूछा है? इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज भी है और ऑर्डर भी है। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पूछता है, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पूछेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? सीरीज के अकॉर्डिंग पूछेगा तो कितने पेयर्स हो जाएंगे? या हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी भी, तो भी सेम ही बात है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछता है, ऑर्डर पूछता है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन का आंसर देंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कितने पेयर्स बने? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना अपने एंड से। आज के लिए इतना वीडियो रखते हैं। चलो, yes students, bye bye, thank you, and please like and subscribe my video and my channel. Yes, thank you. And my YouTube channel is Yadav Usha Classes. I will send you the link. Okay, bye bye. If you have any query, please comment me in the comment section. Okay, thank you, bye bye, take care.